You're listening to the Quince podcast. Hello and welcome. You're joining us live on the Quince YouTube channel and other social media platforms. Today is a very important day in the political calendar. It's the day when 5 states get their exit poll results. With me is the Quince political editor Aditya Menon, and we're going to decode for you the exit poll results from the all-important state of Uttar Pradesh, but also from the states of Goa, Manipur, Uttarakhand, and we have Punjab, of course. So from these 5 states, we're going to get you the exit poll results and analysis. I'm Meghnad Bose. Thank you so much for joining us on the Quint. Aditya, we haven't got the exit poll results from Uttar Pradesh, so we're going to start with Punjab. What are the numbers in Punjab telling us? Is it almost certainly a sweep for the Aam Aadmi Party on the 10th of March? So Meghnad, the polls seem to be pointing in the same direction, that the Aam Aadmi Party is probably heading towards a majority, maybe even crossing it. But they seem to be differing on the extent of the lead that the Aam Aadmi Party has. For instance, the Axis My India exit poll, actually that's one poll which has really stuck its neck out. एक्सिस माई इंडिया पोल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को 2/3 बहुमत मिल सकती है पंजाब में, तो एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक 7 साल पुरानी पार्टी है। वो सिर्फ दिल्ली में उसकी प्रेजेंस रही है, लेकिन अब पंजाब में एक्सिस माई इंडिया पोल के एक्सिस इंडिया टुडे पोल के हिसाब से लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को 2/3 बहुमत मिल सकती है। लेकिन 2 और पोल हैं, एक सी वोटर एबीपी का पोल जिसके मुताबिक आम आदमी पार्टी 51 to 61 सीट्स ला सकती है, और फिर जी डिजाइन बॉक्स का पोल जिसके मुताबिक आम आदमी पार्टी जिसके लीडर है अरविंद केजरीवाल, वो वही 52 to 61 सीट्स ला सकते हैं, यानी मेजॉरिटी मिल भी सकती है लेकिन मेजॉरिटी से नीचे भी हो सकती है। There's also today's Chanakya, which is actually saying that the Aam Aadmi Party is likely to win 100 seats in Punjab and giving the Congress only 10. It's on the other extreme. But Arvind Kejriwal is a man who will sleep happy today, as will Bhagwant Mann, knowing that all exit polls giving them a decisive edge over the Congress. बिल्कुल, आई थिंक ये एक बहुत शक जताया जा रहा था आम आदमी पार्टी के बारे में कि वो लोकसभा में उनका काफी खराब प्रदर्शन रहा, लेकिन इसके बावजूद भी क्या वो पंजाब में एक बदलाव की राजनीति ला पाएंगे। लेकिन लग रहा है कि आम आदमी पार्टी कामयाब रही है। अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और राघव चड्ढा, उनकी तमाम पंजाब की लीडरशिप काफी खुश होगी आज, और उन्हें लग रहा होगा कि हम सत्ता के कगार पर पहुंच गए हैं इस बहुत बड़े राज्य में। Now, Aditya, Charanjit Channi is a very new prime minister. It's just been 5 months into his chief minister. Just been 5 months into his chief ministership. What did the Congress get wrong? Now, of course, this is with a disclaimer. ये disclaimer जरूर बता दे दर्शकों कि 10 तारीख को the results might as well be very different. The exit polls might have got it wrong, but the exit polls are telling us that somewhere Charanjit Singh Channi और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कैलकुलेशन गलत हुआ है। तो आपको क्या लगता है पंजाब में where has the Congress lost the plot if these numbers are to be believed? सी मेघनाथ, irrespective of the results, कुछ चीजें काफी क्लियर हैं पंजाब में। एक बात यह है कि कांग्रेस ने अपना जो पूरा लीडरशिप इशू है वो काफी ज्यादा मैसअप कर दिया था। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना जरूरी था, वो काफी अनपॉपुलर हो गए थे, उनके कामकाज को लेके काफी सवाल उठाए जा रहे थे। चन्नी को बनाया, एक दलित समुदाय को एक सिग्नल दिया गया, वो भी ठीक है, लेकिन चन्नी को प्रोजेक्ट करने में बहुत देर की। सिद्धू और चन्नी के बीच में एक वो एम्बिग्विटी रखी गई। सिद्धू, चन्नी और तमाम मिनिस्टर्स पे अटैक करते गए, तो एंड तक कांग्रेस ने ये कंफ्यूजन ओवर लीडरशिप बरकरार रखा। और जब फाइनली चन्नी के नेफ्यू के खिलाफ रेड्स पड़े, तो चन्नी जो कांग्रेस का एक ट्रम्प कार्ड था, उसका अपना असर कम हो गया। तो कांग्रेस को चेंज ऑफ गार्ड करना जरूरी था, लेकिन काफी और चीजें जो उसके साथ उन्हें करनी चाहिए थी। उन्हें टिकटें चेंज कर देनी चाहिए थी। अगर वो वाकई में एक तब्दीली लाना चाह रहे थे तो फिर तब्दीली और बड़ी होनी चाहिए थी। काफी प्रोमिसेस जो कांग्रेस ने नहीं फुलफिल कर पाए, वो फुलफिल कर देने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो सिर्फ चन्नी को लाने में शायद कांग्रेस की गलती नहीं थी, लेकिन उसके साथ जो बाकी चीजें नहीं की कांग्रेस ने, वहां पर चूक गए। सोशल मीडिया पे ये बात, ये जो काफी वायरल किया जा रहा था, दैट वेयर पीपल वर लाइक Punjab must be the only state where both the opposition party and the ruling party are saying that nothing has happened in the last 5 years. Absolutely.
Absolutely. तो ये जो एक प्लेटफॉर्म था, बिकॉज लुक फॉर Charanjit Singh Channi to be politically acceptable among the people, he had to push the narrative that Amrinder Singh had been failing at his job. Now, Amrinder Singh was from the party that Charanjit Singh Channi is fighting today on. So, did that narrative somewhere hurt them that they had to fight against their own CM who had been chief minister for 4.5 years? ऐसा नहीं कि 2.5 साल बाद बदल दिया, अमरिंदर से सिद्धू को बना दिया, अमरिंदर से चन्नी को बना दिया। 4.5 साल बाद आप चीफ मिनिस्टर बदल रहे हो और बोल रहे हो कि 5 महीने के बेसिस पे आप वोट दीजिए। बिल्कुल जी, प्रियंका गांधी ने एक रैली में कहा कि 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी की सरकार चलाई। तो पंजाब में ऐसे इसका एक सीधा एक टर्म बहुत यूज होता है पंजाब में कि तुसी की किता, कि व्हाट डिड यू डू। अगर वो वाकई में 4.5 साल बीजेपी की सरकार चला रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, आपने उन्हें हटाया क्यों नहीं, पहले इतने एंड तक ये मामला क्यों रखा। तो ये सारे सवाल हैं जो कांग्रेस की लीडरशिप अब नजरअंदाज नहीं कर पाएगी अगर जिस किस्म के रुझान लग रहे हैं अगर वो वाकई में रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो। Aditya will cut away from Punjab now to Uttar Pradesh for a few minutes. Uttar Pradesh, the first numbers are coming in. According to the Times Now Veto exit poll, the BJP is slated to win 225 seats in UP. They're giving the BJP a majority, but remember, उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, तो मैजिक फिगर जो मेजॉरिटी मार्क है वो 202 है। पिछला बार यूपी में बीजेपी हैड क्रॉस 300, पर इस बार अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ वीटो बीजेपी स्लेटेड टू विन 225। नाउ आदित्य, माय क्वेश्चन टू यू इज दिस, जब नंबर मेजॉरिटी मार्क के इतना पास है, does that mean that there is still a definite possibility for the SP to come out on top on 10th? Meghna, there is a possibility because see, BJP was at 325, and now if this number is true, they would be at 225 according to this exit poll. So they have already lost 100 seats according to this poll at least. So that means the direction and momentum is completely against the BJP. So it's quite possible that what we are estimating as 100 could end up being 130 or 140. I think what's really happening is the last election was entirely masterminded by Amit Shah. He was the BJP's in charge for Uttar Pradesh, and he delivered an excellent verdict for the party in the 2014 Lok Sabha elections, and the momentum carried on till the 2017 assembly elections. Amit Shah really masterminded this entire new social coalition that the BJP had woven, going beyond its upper caste voters to non-Yadav OBC and non-Jatav Dalits. But this time, this coalition seems to be crumbling a bit. I think the biggest deficit that the BJP is suffering is among the Jat voters. फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से जाट वोटरों का एक बहुत बड़ी तादाद समाजवादी पार्टी के अलायंस के तरफ जाती हुई नजर आ रही है। और व्यूअर्स को बता दें कि समाजवादी पार्टी अकॉर्डिंग टू टाइम्स नाउ वीटो एग्जिट पोल, द एसपी इज प्रेडिक्टेड टू विन 151 सीट्स, द बीएसपी इज only at 14, the Congress at 9 and others at 4. So the anti-BJP vote, at least मतलब जो सीट निकाल पाया है ऑपोजिशन पार्टीज ने, seems to have been done mostly by the SP and of course by the SP RLD combined, क्योंकि वेस्ट यूपी जो है वो फार्मर्स प्रोटेस्ट का भी एक बड़ा असर रहा होगा वेस्ट यूपी में. So West UP, if these numbers hold, it would be fair to say that the SP RLD combined would have performed very well in West UP for these numbers to hold. But if they are at 151, आदित्य ये बताइए, 225 151 अगर हुआ तो सरकार तो डेफिनेटली बीजेपी का ही बनेगी. But how low does the BJP have to come for it to be realistically unable to form the government? See, the BJP is a very innovative party. Even if they get 190 seats or 185 seats, one would still give them a fair chance of forming the government. I think the only thing that will get the BJP in danger, BJP तभी खतरे में आएगी जब समाजवादी पार्टी अपने दम पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए. तो तभी गवर्नर को समाजवादी पार्टी को इनवाइट करना पड़ेगा. तो एक थ्रेशोल्ड समाजवादी पार्टी ने क्रॉस करना है. अभी फिलहाल ये जो हो रहा है, जैसा कि मेघनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी जो एंटी बीजेपी वोट है उसको ना पूरी तरह कैप्चर करने में कामयाब हुई है. समाजवादी पार्टी ने, खासतौर पर अखिलेश यादव ने बहुत ही अच्छी तरह से जनता को बताया कि ये जो चुनाव है ये दो तरफा चुनाव है. या तो आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं या आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, या तो आप सपा को लाना चाहते हैं
या आप योगी आदित्यनाथ को बरकरार रखना चाहते हैं। तो ये एक बाइपोलर इलेक्शन बना दिया था समाजवादी पार्टी ने। बीजेपी ने असल में बहुत कोशिश की कि इसकी बाइपोलैरिटी कम की जाए। एक बार अमित शाह ने कहा कि नहीं, बसपा को बहुत अच्छा वोट मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी पे हमला किया, योगी आदित्यनाथ जी ने असदुद्दीन ओवैसी पे हमला किया, ये दिखाने के लिए एंटी बीजेपी वोटर्स को देखिए ये बाकी प्लेयर्स भी हैं। लेकिन लग रहा है कि यूपी की जनता ने ये तो फैसला कर दिया कि अगर बीजेपी को हराना है तो अखिलेश यादव को ही वोट देना पड़ेगा। अब बस सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को हराना चाहती है जनता? ये तो हम समझ गए कि जो हराना चाहते हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। We'll interrupt the discussion on UP and we'll come back to the discussion on UP in a while because we're not going anywhere. But now let's give you the numbers in Uttarakhand. In Uttarakhand, the seat projections are all in more or less. Times now, Veto is giving, it's a close fight. They're saying BJP 37, Congress 31. India Today, Axis My India कह रहा है BJP 36 to 46, Congress उससे थोड़ा नीचे 20 to 30. ABP News सी वोटर उल्टा कह रहे हैं 26 to 32 बीजेपी बट 32 to 38 कांग्रेस। तो दो एग्जिट पोल्स अब तक बीजेपी अहेड, तीसरा एग्जिट पोल कांग्रेस अहेड। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स क्या कह रहा है? जी न्यूज डिजाइन बॉक्स कह रहा है 26 to 32 बीजेपी, 35 to 40 कांग्रेस। सो इट्स 2-2 सो फार। और न्यूज 24 टुडे चाणक्य कह रहा है बीजेपी 43 ±7, so 36 to 50, Congress 24 ±7, so 17 to 31. So this Uttarakhand is actually a state 5 एग्जिट पोल में से 3-2 का स्प्लिट वर्डिक्ट है। और वो स्प्लिट भी ऑब्वियसली फॉर आवर व्यूअर्स, जो एग्जिट पोल के जो आप आज सीट प्रिडिक्शन देख रहे हो, वो जो सारे एजेंसीज होते हैं, दे फर्स्ट कैलकुलेट की लाइकली वोट शेयर कितना है और उसके बाद एनालिसिस करके बोलते हैं कि अगर वोट शेयर इतना है तो सीट प्रेडिक्शन लाइकली इतना होगा। But for it to be split down the middle, Uttarakhand is one state that we can firmly say neither Pushkar Dhami nor Harish Rawat will think that they've got it in the bag yet. They'll have to wait for 10th and they don't even know whether to feel happy today. I think, Meghna, to use a bad pun, the hill state is ending up for a cliffhanger. But I think the issue here is that Uttarakhand, the margins are always a little narrow. Both the BJP and Congress have very strong bases. Uttarakhand is basically a BJP-minded state, which occasionally votes Congress at the state level. But at the central level, BJP has actually dominated the state in every election except for 2009. So, will this election be more national or will it be more regional? Harish Rawat has really tried to focus on the regional battle. वो दिखाना चाहें कि बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, उत्तराखंड को वो ना दिशा दे पा रहे हैं, ना उत्तराखंड की दशा बदल पा रहे हैं। ये हरीश रावत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता वहाँ बहुत ज्यादा है। एक्स सर्विसमैनों की आबादी भी बहुत है, तो वहाँ नेशनल सिक्योरिटी वाला मुद्दा भी चल जाता है, जो किसी और स्टेट में इतना नहीं चलता। तो उत्तराखंड में एक और बात है कि बीजेपी का वहाँ बेस बहुत स्ट्रांग है, बीजेपी की कैडर स्ट्रेंथ है। दूर दराज के इलाकों में भी आपको बीजेपी का एक कैडर मिल जाएगा, तो एक वो एडवांटेज बीजेपी को पोलिंग डे पे नजर आ जाता है। जो बूथ लेवल पे जो बूथ लेवल पे जो है बीजेपी इज फार स्ट्रॉन्गर देन द कांग्रेस इन उत्तराखंड। पंजाब का नंबर्स बता दे फॉर दोज हु आर वाचिंग दिस लाइव। पंजाब में एवरी सिंगल एग्जिट पोल is putting the Aam Aadmi Party ahead of the Congress. पंजाब में आपका न्यूज 24 टुडे चाणक्य कह रहे हैं कि कांग्रेस 10, आम आदमी पार्टी 100. It's a very, very decisive figure that they've given with absolutely no scope in their mind, at least, that it's going anywhere else. It's in fact, if the Aam Aadmi Party can pull off a figure like this, it will be a Delhi-like election. अगर 110 वाकई होता है. इन टाइम्स नाउ वीटो कह रहा है कांग्रेस 22, आप 70. तो पहला 110 इन फेवर ऑफ आप, दूसरा पोल कह रहे हैं 70-22 इन फेवर ऑफ आप, तीसरा जी न्यूज डिजाइन बॉक्स कह रहे हैं कांग्रेस 26-33, थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी 52-61, शिरोमणि अकाली दल 24-32. इनफैक्ट they are saying that Shiromani Akali Dal will get almost as many seats as the Congress, maybe even more. This is a very interesting thing from Z News Design Box. And yeah, that's it. So one by one, all the big exit polls are saying ABPC voter कह रहा है Congress 22-28,
Aam Aadmi Party 51 to 61. Again, Shiromani Akali Dal 20 to 26. Now, is this the return of the Shiromani Akali Dal? The Akalis were, for the longest time, the commentariat had been almost writing them off in Punjab, calling it a straight fight between Aam Aadmi Party and Congress. If they manage to get more seats, or even as many seats as the Congress, they will effectively also be the primary opposition in the state. Regardless of how happy Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann are today, the Akalis would be feeling happy as well. देखिए, शिरोमणि अकाली दल जो है वो 100 साल पुरानी पार्टी है। वो पंजाब की जनता के ताने बाने से, पंजाब के कल्चर के ताने बाने से जुड़ी हुई पार्टी है। गुरुद्वारों पे उनका कंट्रोल है, अकाल तख्त पे उनका काफी इन्फ्लुएंस है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में उनका कंट्रोल है। तो शिरोमणि अकाली दल कभी भी आउट ऑफ इन्फ्लुएंस, आउट ऑफ पावर, आउट ऑफ रिलेवेंस पंजाब में नहीं जाने वाली है। इलेक्शंस में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लेकिन शिरोमणि अकाली दल की एक कैडर स्ट्रेंथ भी है जिसके बेसिस पे वो एक मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स जीत सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल का लेकिन एक डिसएडवांटेज है, वो एक प्रिडोमिनेंटली सिख प्लस दलित बेस की पार्टी है। अर्बन हिंदू वोटर, अपर कास्ट हिंदू वोटर आम तौर पे शिरोमणि अकाली दल को वोट नहीं देता। लेकिन शिरोमणि अकाली दल, स्पेशली बादल फैमिली, दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग बेस इन पंजाब एंड भले ही इस इलेक्शन में कहा जा रहा है वो नंबर 3 हो सकते हैं या एक क्लोज नंबर 2 विद कांग्रेस हो सकते हैं, लेकिन वो अभी उनको इररिलेवेंट कहना या ये कहना कि शिरोमणि अकाली दल खत्म हो जाएगी और ये बाइपोलर पार्टी हो जाएगी पंजाब, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वैसा नहीं होगा। Seems inaccurate to say that. And the last one from Punjab, India Today, Access My India कह रहा है कांग्रेस 19 to 31, आम आदमी पार्टी 76 to 90. So that is a very, very decisive. The exit polls on Punjab at least, on Punjab, it seems advantage up, and I'll request Aditya, who I'm sure has better handwriting than mine, to explain in bullet points what you think, Aditya, is making has made Aam Aadmi Party tick in Punjab, and that too so decisively. मैं वैसे हिंदी का वर्ड है लेकिन इंग्लिश में लिखूंगा सबके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एक लफ्ज है, हमने पूरे पंजाब में इसको हर जगह सुना और मैं काफी पंजाब में घूमा। मैं माफी चाहता हूँ, जो ग्राफिक पीछे चल रहा है वो हरियाणा के मैप का है, लेकिन पंजाब में सारे जिले मैंने कवर करे। और बदलाव, ये एक लफ्ज है, वो पंजाब का हर शख्स बोल रहा था कि सानू बदलाव चाहिए है, हमें बदलाव चाहिए, वी वांट चेंज। नाउ आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी सक्सेस ये थी कि वो अपने आप को इस बदलाव का एक मेन एजेंट प्रोजेक्ट कर पाए। जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था, एक मिनट आपको रोकूंगा, बस यूपी का और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, आई एम श्योर आवर व्यूअर्स विल वांट टू नो दैट, एंड विल गो ऑन and continue with the analysis from Punjab. India Today, My Axis, is predicting a sweep by the incumbent BJP and allies in UP. BJP 288 to 326 is what Axis My India is predicting for the BJP in UP. For SP 71 to 101, so big gains from 2017, and we'll show our viewers the map from 2017 as well. BSP 3 to 9, Congress 1 to 3. और ये बात मतलब चर्चा में, you've also been traveling across UP, I've also been traveling across UP. A lot of our reporters have traveled the length and breadth of the state to get you ground reports from across the state this election. One thing many of us felt was that there was a massive consolidation of the Muslim vote behind the SP. A lot of places which traditionally voted for the Congress, especially Muslim voters, have chosen to go behind the SP. Maybe that's what is showing in the numbers when it's Congress 1 to 3, others 2 to 3. But the big takeaway, BJP 288 to 326. Our viewers will remember कि 2019 के election के पहले a lot of us had got a lot of our predictions wrong. जब लोग कह रहे थे कि यार बीजेपी तो शायद जीत जाए, but 2014 जैसे नंबर नहीं आ पाएगा. And eventually we know what happened. BJP got more in 2019 Lok Sabha than in 2014. Is there a possibility, a very real possibility based on Axis My India numbers coming in, कि यूपी में भी वो हो सकता है? और अगर ऐसा होता है, then where did the people who were reading the situation on the ground get it wrong कि equal टक्कर रहा है? See, I think हो सकता है, बेशक हो सकता है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है जो इनका फिगर है
वो भी हो सकता है, और इससे कम जो आपने पिछला पोल बताया 225, बेसिकली कहने का ये मतलब है कि समाजवादी पार्टी को गेन हो रहा है ड्यू टू कंसोलिडेशन ऑपोजिशन वोट्स. आई थिंक वेयर ऑल द पोल्स आर डिफरिंग इज to what extent is BJP losing, and if at all BJP is losing ground at all. कुछ पोल्स का मानना है कि बीजेपी का वोट शेयर कम होगा, कुछ को लगता है या तो वोट शेयर बरकरार रहेगा या बढ़ जाएगा बाइपोलैरिटी के चलते. लेकिन चूंकि सपा की वोट अपोजिशन कंसोलिडेशन की वजह से बढ़ रहे हैं, तो बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, जो मुझे भी लगता है वहां तक बात ठीक है. लेकिन ये कहना कि जो काफी जो ऑब्जर्वर्स ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, लेकिन हारने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 222 सीटें ऐसी थी जो बहुत हाई मार्जिन से, और आपके पीछे वो सीट्स दिख रहे हैं, ये 2017 के रिजल्ट से आदित्य. आप 2017 के मैप देखेंगे, 2017 रिजल्ट्स के मैप, इट इज ऑल ऑरेंज. इट इज ऑल ऑरेंज barring some SP pockets. Red is for Samajwadi Party and green is for the blue is for the BSP. You'll see that most areas the BJP dominated. West UP, they dominated central UP. It's only that in East UP it was a more even fight. But Aditya, this time, if the BJP were to have pulled off these numbers, then does that mean that we were wrong in West UP as well, where all of us unanimously said that the SP RLD seems to be doing very well in phases 1, 2 and 3? See, Meghnad, some gains will happen for the Samajwadi Party alliance in this region. This is the Rohilkhand region where the Muslim population is 40% and above. Many of the seats BJP won last time because the Muslim vote split between the BSP and the Samajwadi Party. But this time there seems to be consolidation in favor of the Samajwadi Party. Now, irrespective BJP का वोट शेयर घटे या बढ़े, ये कंसोलिडेशन से जो सीटें पलटनी है वो पलटेंगी, तो वो नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ेगा. फिर हम इस इलाके में आते हैं ईस्ट यूपी में. यहाँ पर जो चीज हमने देखा कि बीजेपी की जो विन्स थे, यहाँ पे मार्जिन बीजेपी का थोड़ा कम था इस इलाके के मुकाबले. तो यहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4, 5-5% के स्विंग में समाजवादी पार्टी काफी सीट पलटा सकती है. तो यहाँ पर भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है. मेनली जो हमारे ऑब्जर्वर्स ने गलती करी वो है इस बीच के इलाके को जज करने में. उन्हें लगा कि 20% का स्विंग हो जाएगा समाजवादी पार्टी के फेवर में और बीजेपी के खिलाफ, और यहां पर भी सीटें पलटेंगी. हमारा जो ऑब्जर्वेशन था कि यहां पर भले ही एसपी गेन कर रही है, जैसे बुंदेलखंड में लोगों में गुस्सा है, बुंदेलखंड में 19 की 19 सीटें, यहां पर जो इलाका है बुंदेलखंड का मध्य प्रदेश से सटा हुआ, बीजेपी ने 19 आउट ऑफ 19 सीट्स पिछली बार स्वीप करी थी. यहां पर एसपी को गेन हो रहा है, बट चूंकि बीजेपी के मार्जिन सारे 20-20, 25-25, 30-30% हैं, तो थोड़े बहुत गेन से भी कोई फायदा नहीं हो रहा. वो सीट बीजेपी रिड्यूस मार्जिन से जीत रही है. और ये मैंने आदित्य को बोला था. एक कमेंट पढ़ लेते, 1-2 कमेंट. 5 मिनट काम्स बोल के यूट्यूब अकाउंट ने कमेंट किया है, दिस इज लाइक अ स्कूल क्लास. 5 मिनट काम को बता दे कि हम लोग भी प्रोफेसर मैंने नहीं बुलाते आदित्य को ऑफिस में. A couple more comments. There's one comment that I just have to read out. Somebody said that exit polls are mostly not reliable. They are fake because I think it's just tukka only for TRP. And people use it for TRP. एक तो ये तो दर्शकों की हर बार होते हैं. Are exit polls like predicting the weather? कि हाँ थोड़ा तो बोल सकते हो, बट ज्यादातर आपके फाइनल डे पे गलत भी होता है, क्योंकि पहले भी एग्जिट पोल्स गलत हुए हैं. तो ये दर्शकों की क्वेश्चन को थोड़ा एड्रेस कर लो कि एग्जिट पोल्स फेक. देखिए फेक है या नहीं, लेकिन देखिए लोग काफी मेहनत डालते हैं एग्जिट पोल लाने में. वाकई में लोग सर्वे करने फील्ड पर जाते हैं, डेटा लाते हैं. गड़बड़ यहाँ हो जाती है कि जब उस डेटा के बेसिस पे सीट प्रेडिक्शन करना शुरू हो जाता है. क्योंकि आप चाहे एक सीट में 1000 लोगों से भी बात कर लें, वो फिर भी वो सीट में 3-3, 4-4 लाख लोग होंगे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में. आप 1000 लोगों से बात करके भी आपके पास कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं आएगा कि ये सीट किस तरह पलटने वाली है, खासतौर पर जब मार्जिन 5-5, 7-7% के हैं. तो असली गलती, द मेन मिस्टेक दैट ऑल दीज एग्जिट पोल्स मेक इज इन सीट प्रेडिक्शंस. मेरा ख्याल है इन्हें सिर्फ वोट शेयर प्रेडिक्शन करके छोड़ देना चाहिए. सीट प्रेडिक्शन करने ही नहीं चाहिए एग्जिट पोल वालों को. वहीं पर ये सारी इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल पैदा होने लग जाते हैं. Now we also shift to the map of Punjab and you can take us to the region wise breakdown. See, look, in 2017 the map was very stark. In 2017 the AAP did phenomenally well in this region.
But in the rest of Punjab, it was largely a marginal presence, winning just a handful of seats. Winning just a handful of seats. What would the AAP have done over the past 5 years to expand their base in the rest of Punjab? See Meghnath, this region is what we call the मालवा region. और ये इलाका जहां आपने अच्छा प्रदर्शन किया, ये मालवा की कॉटन बेल्ट है, जहां पे सबसे ज्यादा एग्रेरियन अनरेस्ट था पिछले इलेक्शन के दौरान. ये संगरूर, मानसा, बरनाला जैसे जिले हैं यहाँ पे. पिछले 5 सालों में, खासतौर पे पिछले 2 सालों में, आपने पहली बात तो बाकी मालवा के हिस्सों में, जैसे फिरोजपुर के इलाके हो गए, यहाँ बठिंडा का इलाका हो गया, यहाँ पे पटियाला और लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, ये सब एरिया में आपने अपने आप को एक्सपैंड किया. फिर यहाँ पर जो एरिया आता है माझा, यहाँ जहाँ पे अमृतसर, गुरदासपुर और पठानकोट और तरन तारण के जिले आते हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी, यहाँ पे अर्बन सेंटर्स बहुत सारे हैं, जैसे अमृतसर में खुद बहुत सारी सीटें हैं. आम आदमी पार्टी ने अलग स्ट्रेटेजी अपनाई. यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने जो एक रूरल फोकस था मालवा में, उसको चेंज करके अर्बन फोकस कर दिया. और ये इन्होंने केजरीवाल मॉडल, जहाँ पे सस्ती बिजली और बेहतर हेल्थ केयर, बेहतर एजुकेशन, ये 3 मुद्दों पर ये पूरा चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी ने. और ये प्रॉमिस किया कि करप्शन को कम कर देंगे. तो माझा में जो है केजरीवाल मॉडल की वजह से आम आदमी पार्टी को लगता है कामयाबी मिली है. लेकिन इस इलाके में आके आम आदमी पार्टी का लगता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकता है. ये दोअब्बा का इलाका है, यहाँ पर हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा दलित कंसंट्रेशन इन इलाकों में है. दोअब्बा जो यहाँ हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, यहाँ पर 40% के करीब कुछ इलाकों में, कुछ जगहों में दलित आबादी है, कुछ जगहों में 50% भी दलित आबादी है. यहाँ पर लग रहा है कांग्रेस को सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के वजह से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मिला है. जो कांग्रेस को पिछली बार 15 सीटें मिली थी, 15 की 15 नहीं मिलेंगी, लेकिन जो नुकसान बाकी इलाकों में देखा जा रहा है, कांग्रेस कुछ हद तक उसे बचाने में कामयाब हुई है. कम से कम सी वोटर और डिजाइन बॉक्स के पोल से ये जाहिर हो रहा है. तो पंजाब के ये रीजनल जो डिफरेंसेस हैं, हालांकि बहुत छोटा सूबा है पंजाब, पे बहुत बड़ा सूबा नहीं है, 117 सीटें ही हैं, लेकिन फिर भी तीनों इलाकों का एक अलग किस्म की पॉलिटिक्स यहाँ चलती है. भगवंत मान जो है वो इस इलाके से आते हैं, जो मालवा का इलाका है. और मालवा में भगवंत मान की वजह से पंजाब को, आम आदमी पार्टी को बहुत फायदा होता नजर आ रहा है. And this is why also Charanjit Singh Channi fought from a constituency which has traditionally been very difficult for the Congress, right? एब्सोल्युटली. ये यहाँ पर भदौर की सीट यहाँ पड़ती है, जहां तक मेरा ख्याल है. हाँ, ये भदौर की सीट है. यहाँ पे कांग्रेस पार्टी 2012 को छोड़कर पिछले कई दशकों में ये सीट जीतने में कामयाब नहीं रही है. तो एक बहुत ब्रेव डिसीजन था चरणजीत सिंह चन्नी का कि मैं भदौर में अगर मैं लड़ूंगा, बरनाला डिस्ट्रिक्ट की सीट है, तो इस इलाके में जहां आप मजबूत है, हम सीधा सीधा हमला आम आदमी पार्टी पे कर देंगे. लेकिन एग्जिट पोल्स के हिसाब से लगता है इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ. I'm going to throw you a controversial question. When everyone takes stock, जब सारे पार्टी स्टॉक लेते हैं ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे, थर्सडे चलिए रिजल्ट्स आएंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को, who is to blame for the mess in Punjab? Will heads roll in the Congress party? Will Charanjit Singh Channi continue to be the party's top face? Will Navjot Singh Sidhu be given a chance? Of course, ये काफी प्रीमैच्योर सवाल है मेरा, मैं मानता हूँ, क्योंकि असली रिजल्ट तो थर्सडे आ रही है, असली रिजल्ट्स नहीं है. ये तो फिलहाल 2017 के रिजल्ट्स है, बट आज भी जो है वो असली रिजल्ट्स नहीं है, वो बस एग्जिट पोल है, रुझान है. आपको थर्सडे जरूर 8:30 बजे सुबह से वी आर गोइंग टू बी लाइव, आदित्य एंड आई गोइंग टू बी लाइव ऑन काउंटिंग डे. वी विल कम टू यू विद एनालिसिस एंड लाइव लीड्स एंड रिजल्ट्स दैट डे एज वेल. But very premature question, but if you were to answer that question, where do you think the buck stops, or where do you think the blame lies for the Congress party not being able to win a state where they were so well positioned in? See, Meghnath, according to me, the buck stops with the Congress's central leadership. It does not stop either with Channi or with Sidhu. नवजोत सिद्धू पे ब्लेम डाला जा सकता है और कुछ लोग डालेंगे भी, बट वो कहेंगे कि मैं तो सीएम फेस था ही नहीं, मेरे पास कोई पावर नहीं थी. सीएम चन्नी के ऊपर अगर कोई ब्लेम डालेगा तो वो कहेंगे जी मुझे तो 3 ही महीने मिले, मैं क्या ही कर सकता था. असली ब्लेम कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप पे है. पहली बात, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निगरानी नहीं रखी कि उनका कैसा परफॉर्मेंस है, और अगर उनका परफॉर्मेंस खराब था तो उन्हें टाइम पर नहीं निकाला. फिर दूसरी बात, लीडरशिप के इशू को लेकर कांग्रेस ने इतने देर तक एम्बिग्यूटी रखी. चन्नी और सिद्धू के बीच में लड़ाइयां करते रहे, और यानी सिद्धू चन्नी के खिलाफ बोलते रहे, और कांग्रेस ने उन्हें नहीं रोका और अपनी सरकार की क्रेडिबिलिटी खराब कर दी. तो अगर किसी की गलती है तो कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप के वीकनेस को ब्लेम किया जा सकता है.
इसमें पंजाब लीडरशिप को बियॉन्ड ए पॉइंट ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ हद तक कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी सरकार पर ब्लेम जा सकता है, क्योंकि जो 4.5 साल उनका ये खराब प्रदर्शन रहा है, मिस गवर्नेंस रही है, अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस रहे हैं, उन सारी चीजों का जाहिर सी बात है कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा है। My next question, आदित्य, आप एक बार back to UP. We'll get you मणिपुर के results in just a short while. मणिपुर का results are shortly coming in. Exit poll. यूपी का ये रहा आपका फेज वाइज मैप। ये फेज 1 वेस्ट यूपी, फेज 2 वेस्ट यूपी, फेज 3, 4 and 5 was central parts of UP, phase 6 and 7 in पूर्वांचल और ईस्ट यूपी। नाउ आदित्य, अगर आप बता सकते हैं where do you think the game has swung in UP if the exit poll results are to be believed, which so far there is not a single exit poll जो कह रहा है कि समाजवादी पार्टी आरएलडी का कंबाइन नंबर 1 रहेगा। सभी कह रहे हैं अभी तक कि बीजेपी इज अहेड, सम आर इवन सेइंग फार फार अहेड। तो फेज वाइज बता दीजिए कि कहां कहां आपको लगता है एसपी के फेवर में गया होगा, कहां कहां आपको लगता है बीजेपी के फेवर में गया होगा, और क्लियरली बताइए कि क्यों ऐसा लगता है। देखिए, बीजेपी को 325 से मेजॉरिटी के नीचे लाने के लिए हर फेज में बीजेपी की 19 सीटें कम होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे ख्याल से शायद ही किसी एक आध फेज में ऐसा हुआ होगा। सबसे ज्यादा फायदा लग रहा है समाजवादी पार्टी को फेज 1 में मिला है, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनकी अलायंस थी, और कुछ हद तक जाट वोटर खासतौर पे जो गन्ने की खेती करते हैं वो राष्ट्रीय लोकदल की तरफ आए। फिर आते हैं फेज 2 पर। यहाँ पर जो गठबंधन को फायदा हो वो ज्यादातर मुस्लिम वोट के कंसोलिडेशन से हुआ है। तो इन 2 फेजेस में कहा जा सकता है कि गठबंधन को फायदा हुआ है। लेकिन फेज 3, फेज 4 और फेज 5, इन 3 फेजेस में खासतौर पर 3 और 4 में लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने काफी हद तक बाजी बचा ली है। फेज 4 में लखनऊ और कानपुर जैसे अर्बन इलाके आते हैं, लखनऊ आता है, कानपुर शायद दूसरे फेज में था, बट यहाँ पर बीजेपी काफी हद तक बचाने में कामयाब रही है। फिर एक और फेज है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, ये है फेज 6। यहाँ पर बीजेपी ने अपर कास्ट और नॉन यादव ओबीसी के बेस को शायद बरकरार रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीएसपी के लीडर थे, बीजेपी में शामिल हुए और अभी इलेक्शन से पहले सपा में चले गए, तो वो इसी इलाके से आते हैं। बहुत उम्मीदें अखिलेश यादव ने उनसे लगाई हुई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से वहां पर मौर्य समाज के, कुशवाहा समाज के वोट कटेंगे, लेकिन ऐसा शायद हुआ नहीं है। बीजेपी काफी हद तक सक्षम रही है उस वोट को बचाने में। ओबीसी लीडर्स का जो एक्सोडस हुआ था, ज्यादातर ओबीसी लीडर्स जो एक्सोडस में शामिल थे वो ईस्ट यूपी के थे। बारिंग अ कपल फ्रॉम वेस्ट, मोस्टली ईस्ट यूपी के ओबीसी लीडर्स एक्सोडस थे। ईस्ट यूपी में इवन आई ट्रैवल्ड एक्सटेंसिवली थ्रू ईस्ट यूपी। ग्राउंड पे जब वोटर्स से बात कर रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि एसपी की तरह, एसपी के फेवर में एक वेव है। नाउ दिस इज समथिंग वी रिपीटेडली स्पोकन अबाउट आदित्य, कि पिछले बार बीजेपी वन more than 300 seats in the 2017 election. Now, for the SP to have reversed that this election, ground पे sentiment काफी ज्यादा दिखना चाहिए था कि अगर 100 सीट से ज्यादा अगर बीजेपी को नीचे लाना होता, then the sentiment on the ground would have been more palpable. Again, this is the exit poll results seemingly vindicating that idea that we got on the ground. But ईस्ट यूपी में ओबीसी लीडर्स का जो एक्सोडस व्हिच वाज हाइप्ड अप सो मच इन द मीडिया, व्हाई डू यू थिंक दैट्स नॉट बीन एबल टू पे डिविडेंड्स फॉर अखिलेश यादव? सी, आई थिंक लोकल लेवल पे ना कुछ कंट्राडिक्शंस होते हैं जिनको मैक्रो लेवल पे समझा नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पे राजभर समाज की लोकल लेवल में कई जगह कंपटीशन यादव समाज से होती है, उनकी कंपटीशन ठाकुर या ब्राह्मण समाज से नहीं होती। कुछ सर्विस ओबीसीज होते हैं जिनकी डिपेंडेंस होती है लोकल लैंडलॉर्ड पे, तो वो कम्युनिटीज भी ज्यादातर डोमिनेंट कास्ट के खिलाफ नहीं जाती हैं। तो ऐसे लोकल डायनामिक्स के वजह से कई जगहों में हो सकता है बीजेपी अपना ये वोट बचाने में कामयाब नहीं है। We'll go across to our election dashboard now and give us let Professor Menon, as people are calling him, give us a sense of what has worked in favor of the BJP in UP. Now remember, a few months before the election, 8 months before the election, 9 months before the election, it seemed the talk on the ground at least was, it seemed like a clear win for BJP. In recent months, however, लोगों लगने लगा कि सपा मैदान में खड़े हैं, और ये भी बात हो रहा था कि शायद ऑपोजिशन वोट्स का कंसोलिडेशन हो।
मायावती का बात करते हैं, बीएसपी का बात करते हैं, व्हाट impact would the BSP have played in this election? Is the BSP's vote share this time going to prove to be a big thorn in Akhilesh Yadav's back? Probably less than last time. It does seem that this time the consolidation is much better of the anti-BJP votes with the Samajwadi Party. However, ये बात जरूर माननी चाहिए हमें कि कुछ ऐसे वोटर हैं, खासतौर पर अर्बन इलाकों में, जो सपा को नहीं देना चाहते, चाहे वो भाजपा से कितने भी ज्यादा नाराज हों। तो उन वोटरों के लिए बसपा का एक व्यापक ऑल्टरनेटिव होना या कांग्रेस का एक स्ट्रांग ऑल्टरनेटिव होना बहुत जरूरी था। लेकिन बीएसपी और कांग्रेस शायद अपने आप को उस तरह से पेश करने में कामयाब नहीं रहे, तो वो वोटर जो बीजेपी से नाराज भी था वो बीजेपी के साथ ही रह गया। तो सपा को शायद वहां पर जो फायदा मिल सकता था वो नहीं मिला। Okay, now let's come to the dashboard. BJP के पक्ष में क्या गया? What do you think is the biggest advantage that played in favor of the BJP this time? देखिए, एक ना इनका I would say the arithmetic. You mean the caste arithmetic that BJP, I would say the social coalition both that they the managed? caste arithmetic and what the BJP achieved in the last election. Now, last election, the BJP reached a vote share of 40% of in fact 42%. Now, when a party reaches this vote share, it's very difficult to dislodge it completely, especially when the SP was at much less than this, at around 28% if you add its ally, the Congress as well. So, I mean, for a party with 28% to dislodge a party with 42%, it requires a very big swing. It requires this party to gain 7% and this party to lose 7%. Now, this is 7% बहुत बड़ा एक स्विंग होता है यूपी जैसे स्टेट में, जहां पर 2-3% पे सरकारें पलट जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज बीजेपी के लिए ये था। दूसरा एडवांटेज बीजेपी के लिए थे पीएम मोदी। बट एक सेकंड आदित्य, बिफोर यू गो ऑन, आपका वोट शेयर वाला पॉइंट पे ये बता दीजिए, क्योंकि ये हमेशा दर्शकों का सवाल रहता है कि अगर ऑपोजिशन पार्टी एकजुट होकर लड़ते बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि मायावती भी कहती है, बीएसपी भी कहती है कि बीजेपी has done injustice against the state in the last 5 years. That is what the Congress also says. So, tell our viewers, hypothetically, if a BSP plus SP plus Congress coalition were to have been formed, what are the dangers it could have posed, and would it have made sense for the SP to want such a coalition in the first place? See, we saw that coalition in the 2019 Lok Sabha elections. That was probably the strongest opposition gathering that could have happened in the state of Uttar Pradesh. But despite that, in that election, the BJP managed to win above 60 seats out of 80. तो अगर वो उस इलेक्शन में कामयाब नहीं हुआ तो शायद स्टेट इलेक्शन में हो सकता है कि ज्यादा कामयाबी मिलती, पर उसमें एक खतरा भी होता। वो ये खतरा था कि अगर आप पूरी तरह से बाइपोलर कर देंगे तो बीजेपी का वोट शेयर हो सकता है लोकसभा की तरह 50% 45% टाइप हो जाता। तो वो एक खतरा जरूर होता। तो एक तरह से एक मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट अखिलेश यादव को लगा फायदेमंद है, लेकिन चूंकि ना कांग्रेस ना बीएसपी कोई भी अपर कास्ट वोट खींच रही है, तो वो पूरा वोट बीजेपी के पास लगता है बरकरार रह गया। Now you're making a second point, which is you had started writing PM. I'm guessing you're talking about the man on Aditya's right. So PM का क्या बात है कि आप उनको सेकंड बिगेस्ट फैक्टर मान रहे हैं? देखिए, पीएम की ना पॉपुलैरिटी उत्तर प्रदेश में बरकरार है। यहाँ पर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी यूपी में बरकरार है। सवाल ये था ही नहीं कि लोग पीएम से नाराज हैं या उन्हें पसंद करते हैं। सवाल यही था कि क्या मोदी जी की लोकप्रियता बीजेपी को यूपी में बचा सकती है या नहीं, क्या मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट मिल सकता है या नहीं। तो जाहिर है काफी इलाकों में मोदी फैक्टर थे ही नहीं और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिला है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ फिर भी लोग बोलने को तैयार थे, लेकिन पीएम मोदी के बारे में काफी जनता कह रही थी कि नहीं, वो चाहे वो कोविड की बात हो वो क्या ही कर सकते थे, उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे थे। दूसरी एक बात सुनने में आई खासतौर पर ये यूक्रेन के मामले की प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर में इंडिया का नाम बढ़ाया। But do you really think the Ukraine war in Ukraine would have played a factor in the election in Uttar Pradesh? एक वो नैरेटिव बन जाता है, कोई भी फैक्टर जो लोकल मुद्दों से भटकाकर किसी और मुद्दों पर, इंटरनेशनल या नेशनल मुद्दों पर ले जाता है इलेक्शन को, और तो वो बीजेपी के फेवर में ही जाता है।
अब ऐसे में क्योंकि सपा तो यही चाह रही थी कि जितना ज्यादा हो सके फोकस एमएलए लेवल पर आए, क्योंकि बीजेपी एमएलए के खिलाफ बहुत ज्यादा रोष था। बीजेपी एमएलए यानी अयोध्या तक की सीट में लोग ये कह रहे थे कि हम एमएलए को बिल्कुल पसंद नहीं करते, सिर्फ अयोध्या राम मंदिर के नाम पर और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं बीजेपी को। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि पीएम की पॉपुलैरिटी थी तो फिर भी बच गया थोड़ा मामला बीजेपी की। You know, Aditya, there's a third reason I've written here, which I feel is something we heard on the ground across the length and breadth of UP, which is law and order. योगी जी ने गुंडागर्दी खत्म किया है। हम ना जाने कितने वोटर से सुने, वो वोटर चाहे समाजवादी पार्टी के भी वोटर हो या बीजेपी के भी वोटर हो, एंड यू नो दैट देयर इज widespread acceptance on a particular issue if even those who are not voting for you seem to give you credit for that. तो ये law and order वाला मुद्दा, why do you feel it has become such a big, is it the BJP's like the way they've done their promotions on this? Has Yogi been able to sell this narrative for the last 5 years? How did law and order become one of Yogi Adityanath's strong points, जबकि हम रिपोर्टाज करते हैं कि हेट क्राइम ज्यादा हो गए यूपी में, माइनॉरिटीज के खिलाफ हेट क्राइम्स और इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस बहुत हुए, विजिलेंटिज्म बढ़ गया है, फेक एनकाउंटर्स जो है बहुत क्वेश्चनेबल सर्कमस्टांसेस में बहुत सारे लोगों को पुलिस ने मारा है। तो why is it that law and order has been a big plus for the BJP despite all of this that we've reported on and that we've seen on the ground? देखिए, फेक एनकाउंटर्स वगैरह का ना एक तबके का उस पर कोई असर पड़ता नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली इसमें एक सोशल रियलिटीज को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें कास्ट और कम्युनलिज्म है। एक जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है और लोग महसूस कर रहे हैं, असल में एक तबका महफूज महसूस कर रहा है, प्रिविलेज्ड कास्ट का, प्रिविलेज्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी के प्रिविलेज्ड हिस्सों का वो तबका महफूज महसूस कर रहा है। हमारी रिपोर्टर सौम्या जो सीनियर एडिटर हैं, वो लखनऊ गई थी, उन्होंने काफी वहां की लोकल लड़कियों से बात की। जब एक बीजेपी ने स्टेटमेंट किया था कि लड़कियां अब जेवरात पहनकर स्कूटी में रात में भी निकल सकती हैं, तो उन्होंने पूछा लड़कियों से कि वाकई में आप निकल सकते हैं? तो लड़कियों ने कहा नहीं, हम बिल्कुल नहीं निकल सकते, हम तो अंधेरा होने के बाद निकलते ही नहीं है घर से। लेकिन उसमें भी जो एक अपर कास्ट मेजॉरिटी कम्युनिटी की लड़कियां थी, उनका ये कहना था कि हाँ वाकई में लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है। लेकिन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी की थी या ऑपरेस्ड कास्ट से आती थी, उनका ये कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है ना, ये भी काफी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से चलता है। Now, let's come here to what did not work for the SP. Now, remember, हमारे साथ हमारे कैमरा पर्सन अथर भी है, जो बीच बीच में स्माइल कर रहा है जैसे कि यार आप लोग कह रहे हो कि यही फाइनल है। इज दिस द फाइनल रिजल्ट? व्हाई वेट फॉर काउंटिंग डे? अगर एग्जिट पोल से ही सब पता चल जाता है। व्यूअर्स को बता दे, ये फाइनल नहीं है। 10 तारीख को हम लोग वापस ज्वाइन करेंगे, और ये हम लोग टीआरपी के लिए नहीं कर रहे। एग्जिट पोल्स इंपॉर्टेंट होता है, एक दिशा पता चलता है, इंडिकेशन आता है कि काउंटिंग डे व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट। So in that sense also it's important. But coming back to this election dashboard of us, what went wrong for the Samajwadi Party? Now also it's, Aditya, I think it's sort of unfair to say what went wrong, because they've also gained in a lot of seats, but at the end of the day this is the party that was in power 2012 से 2017 सत्ता के लिए दावेदार रहे हैं बहुत सालों से, इस बार भी थे। उनके लिए नेगेटिव सबसे बड़ा क्या रहा? That all the exit polls are giving BJP a decisive victory. देखिए ना, मैं अभी भी I would sort of caveat ऐड करना चाहूंगा कि what went wrong beyond a point ठीक नहीं है। क्यों? अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी 100 सीट क्रॉस कर जाती है, तो यानी वो अपनी टैली डबल कर चुकी है या डबल से ज्यादा कर चुकी है। तो ऐसे में किसी पार्टी के लिए क्या ठीक नहीं रहा, तो वो कहना ज्यादा मुनासिब नहीं है। लेकिन जाहिर है जितना अच्छा होना चाहिए था और जैसे क्लेम्स रहे वैसा क्यों नहीं रहा, तो उसमें एक नेगेटिव फैक्टर जरूर ऐड करूंगा। While Aditya keeps writing, आप लिखिए, while Aditya keeps writing, दर्शकों बता दे, और एक एग्जिट पोल आ गया है, रिजल्ट्स फ्रॉम News 24 today's Chanakya. This is the exit poll agency that has given the Aam Aadmi Party 100 seats in Punjab. 110 का मैंडेट दिया है, but they've also got it right a lot of times in the past. According to predictions by News 24 today's Chanakya, vote share in UP, wait for it, BJP 43% from, I'm sorry, ज्यादा ही excited हो गया,
BJP from 42, they are saying they will go up to 43%, and SP from 28% last time up to 35% this time. So big increase. BJP का 1% increase, SP का 7% increase, BSP 13%, कांग्रेस 4%, others 5%. So हाँ, 43%, 35%. BSP 13%. Numbers add up to 100. But this would mean, we don't have the numbers in yet from today's Chanakya, 43 to 35 is seemingly a fight and is seemingly big gains for the SP. But 43% is also, 42% में वो लोग 300 प्लस जीते थे, तो 43% में अगर वोट शेयर बरकरार रहा है, today's Chanakya also seems to be suggesting that BJP will comfortably come to power. See, I think what today's Chanakya seems to be hinting at is that बहुत bipolar हो गई है बीजेपी यूपी की पॉलिटी. यानी बिटवीन एसपी एंड बीजेपी दोनों पार्टियों ने मिलकर तकरीबन 80% इस स्टेट के वोट हासिल कर दिए हैं. तो इसमें जाहिर है सीटें सपा की बहुत बढ़ेंगी, बीजेपी कुछ सीटें कम होंगी क्योंकि सपा का वोट शेयर बढ़ रहा है ना. ऑपोजिशन जब कंसोलिडेट होता है तो हमेशा मौजूदा पार्टी को नुकसान होता है, लेकिन बीजेपी को जितना नुकसान हारने के लिए सपा के जीतने के लिए होना चाहिए उतना नहीं होगा. शायद लग रहा है ये डेफिनेटली एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी, मे बी 250 प्लस टाइप का आंकड़ा दे देंगे. Back to the negatives. What are the negatives? See, Non-OBC or fear आप समझा रहे हैं. So fear, it was stemming from what we were discussing earlier regarding law and order, Meghnath. एक परसेप्शन बन गया था खासतौर पर अर्बन एरियाज में, खासतौर पर डोमिनेंट कास्ट के लोगों में, कि समाजवादी पार्टी के इरा में गुंडागर्दी ज्यादा होती है. नाउ कुछ क्राइम, देखिए हमारी वेबकूफ टीम ने एक अच्छा एनालिसिस किया था ऑफ द क्राइम रेट इन उत्तर प्रदेश, और ये पता लगा कि कुछ क्राइम के हेड्स में सपा के टाइम में ज्यादा होता था और कुछ क्राइम के हेड्स में बीजेपी के टाइम में ज्यादा हुआ है. तो कोई बहुत ज्यादा एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ डेटा कोई फर्क नहीं है, लेकिन परसेप्शन बन जाता है. जब अमीर, जब मिडिल क्लासेस, जब डोमिनेंट कम्युनिटी के लोग, जब ओपिनियन मेकर्स महफूज महसूस करते हैं, तो वो एक माहौल बना देते हैं कि वाकई में समाज ज्यादा सुरक्षित है. तो एक इस कसम से सपा को लेकर एक माहौल बनाया गया था कि वहां की सपा के राज में लोग महफूज नहीं है, और उसी तरह से भाजपा के बारे में बनाया गया था कि योगी के अंडर लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर हो गया. तो ये जो फियर फैक्टर है कि सपा वापस आ जाएगी, गुंडाई वापस आ जाएगी, इसकी वजह से शायद काफी वोटर जो बाकी इश्यूज की वजह से बीजेपी से नाराज थे, बीजेपी से हटे नहीं. We're getting you updates from 5 states. It's a busy evening and I wish we could show you how hard our desk is working right behind this room in the newsroom. मणिपुर के नंबर्स बता देते हैं. मणिपुर जी न्यूज डिजाइन बॉक्स कह रहा है बीजेपी 33 to 37, कांग्रेस only 12 to 17, others 5 to 7. India Today Access My India giving it more in favor of BJP, even more. BJP 33 to 43, Congress only 4 to 8, others 4 to 8. Big win for the BJP. The BJP's inroads into the northeast continue unabated. Yeah. इसमें ना सिग्निफिकेंट बात यह है कि इन मणिपुर, there are three big communities. The Meiteis, who are Hindu, they live in the plains, and then the Kukis and the Nagas, who live mainly in the hills. Now, last time the BJP won most of its seats. So 21 seat BJP जीती थी, इसमें 15 seats were all in the Meitei dominated districts. But if the BJP is actually crossing 30 seats, as these surveys are indicating, then that means BJP has actually expanded into Kuki-dominated territories and probably even Naga-dominated territories where they had absolutely no presence last time. So BJP crossing 13 Naga in Manipur on its own is very significant. Most people before the elections expected that BJP would be the single largest party and somehow with the help of NPP and NPF will form the government. But this time, if BJP is forming the government on its own, means that it would become a dominant player in all three ethnic groups. And this is going to be a big game changer in the politics of Manipur. Now, we've been with you for the past hour. The numbers will continue to come in on the Quint and Hindi Quint. आपको हर एक स्टेट का, हर एक एग्जिट पोल का नंबर मिलता रहेगा. We don't do a poll of polls because, Aditya, honestly, a poll of polls mathematically doesn't make too much sense, क्योंकि ये सारे रेंज को आप एवरेज नहीं निकाल सकते. तो हम लोग पोल ऑफ पोल्स नहीं कर रहे हैं, पोल ऑफ पोल्स आपको दिखा भी नहीं रहे. बट द क्विंट और हिंदी क्विंट पे आपको सारे exit polls for all states, you will get the numbers. You will also continue to get analysis by the likes of Aditya Menon and several other
other contributors and reporters and senior editors of ours. Stay tuned to the Quint. But before we leave you today, a reminder on the 10th, which is counting day on Thursday, we've got big plans for you. We'll be live 8:30 a.m. on counting day 10th on the Quint's YouTube channel, and you can access us on Facebook, on Twitter. We'll be live everywhere, and also on thequint.com and on Hindi Quint का website. Please जुड़िए हमारे साथ. Counting day पे बहुत सारे analysis रहेगा. आज के लिए final comments. It seems like the BJP is ahead. The exit polls put the BJP ahead in UP. They put the Aam Aadmi Party way ahead in Punjab. In Uttarakhand, it seems to be a split verdict with exit polls divided over whether it's BJP or Congress ruling the roost in Uttarakhand. In Manipur, the two exit polls that we've got so far predict a BJP victory. And in Goa, it is advantage Congress. So the Congress has one state to its name if exit polls are to be believed. The Aam Aadmi Party has one, the BJP has two, and Uttarakhand is divided. Join us on counting day to know how many of these exit polls got it right. And remember, those are the results that are the real results, the actual results. Thank you so much for joining Aditya and myself on this Facebook and YouTube live. We'll see you on Thursday, and stay tuned to the Quint for continuous coverage on exit polls and everything related to the elections. Thanks for listening. Log on to the Quint's website and check out our other podcasts.